आवाज से कुछ करो, बहुत आवाज आती है। ओके, चलो। Assalamu alaikum guys, I hope all of you are doing well. And आज का जो टॉपिक है that has also been requested with me a lot. ठीक है, पिछली क्लासेस में स्टूडेंट्स को saying कि मिस हमें जो है ना connective और transitional devices करा दें, and then subject and verb agreement, and then you know pronoun and noun agreement. ठीक है, so this was something that was highly requested, and we're going to cover this today in our class, ठीक है, extensively. For the students who are not here, I'm pretty sure you'll be watching the recording. I would just like to say कि मैंने already इसका जो practice drill होती है, जो exercise quiz होता है, ठीक है, वो upload कर दिया है. As soon as you watch this class, ठीक है, you guys can go back and then do the practice drill, because otherwise इस तरह की चीजें, because these are the parts of grammar, ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में tenses cover किए थे. This is the part of grammar जो कि are very important for your writing. So if you look up the SLO, ठीक है, आपको समझ आएगी कि इसके ये SLOs में कितना ये important है for your writing, for general grammar, ठीक है, और फिर generally आपको इस चीज की knowledge होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So okay, I have 7 students so far in the class, but I need to start already because एक तो you know I'm on a time crunch. So people who join late, please make sure that you watch it as a recording, okay? Challenging. So we'll start with, of course, I always start all my classes with this, which is basically a new paper pattern kya hai, which is कि कुछ चीजें formative है, कुछ summative है. The things we are going to be studying today, ठीक है, जो कि subject to verb agreement, noun pronoun agreement, and connectives and transitional devices, ठीक है, these are things that are actually in the summative part of your exam, ठीक है. So these will be tested not exactly per se उस तरह से कि आप लोगों को like grammar में उस तरह से आएंगे, but they will be tested in the form of how good is your grammar when you're writing a paragraph, when you're writing a story, when you're writing composition, ठीक है. So this is important in that aspect. So yeah. So let's start with our first topic of the day, which is subject and verb agreement, ठीक है. So subject and verb agreement exactly होता क्या है, ठीक है. Subject and verb agreement का basically मतलब ये होता है कि जब subject होता है किसी भी sentence का, ठीक है, the subject of a sentence and the verb of a sentence वो agree करते हैं आपस में, ठीक है, in number and person. So the number of subjects, ठीक है, is directly proportionate to the number of verb या verbs, ठीक है. So anyways, this is simple enough, right? So basically जो subject और verb होता है वो reflect करता है कि जी for example if there are a lot of things, ठीक है, तो वो जिस तरह से आप उसको लिखोगे, ठीक है, verb को, verb की जो भी form को, ठीक है, that actually shows and agrees with the number of subjects जो कि आपके sentence के अंदर होंगे, ठीक है. I hope this is not very tricky for you, क्योंकि हम आगे जाके इसके एग्जाम्पल्स देखने लगे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है. So it's basically about numbers. So they agree in number and person. Why does it matter now, ठीक है, इतना जरूरी है क्यों हमारे लिए? Is because कि एक तो clarity आती है, एक तो चीजें clear हो जाती हैं, ठीक है. So number of things, basically subjects is clear, ठीक है. उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, ठीक है. सो बेसिकली ग्रामर जो होती है उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है. एंड दैट व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. लाइक हमारे लिए ग्रामर की बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इज बिकॉज मेनली बिकॉज कि अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, ठीक है, तो यू विल एक्चुअली बी लूजिंग मार्क्स, सही है. You will be losing marks in your summary writing, in your paragraph writing, in your story writing, whatever it is. जो भी आप writings कर रहे होगे, अगर उसमें grammatically correct नहीं होंगी चीजें और subject और verb की agreement नहीं होगी, ठीक है, तो आप automatically marks lose कर रहे होगे. And the goal is not to lose marks. So obviously the goal is basically कि
आपने मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर्स में स्कोर करने हैं, राइट? उसके बाद आपकी करेक्टनेस किस में होती है? राइटिंग में होती है, स्पीकिंग में होती है. सो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग इन योर एग्जाम, ठीक है? इट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू in the speaking part of your life as well. So once you know that subject and verb agree करते हैं आपस में, ठीक है, in a way कि आपको number of things reflect होती हैं उन sentences से, ठीक है, तो आपकी grammatical correctness सिर्फ writing में ही नहीं, आपकी speaking में ही आएगी. And obviously that is the goal at the end of the day. अगर हम summative चीजें टेस्ट करें तो formative चीजें वो हैं जो आपकी skills के लिए important है. This is important for your skill, ठीक है. अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो बेसिकली की रूल जो है ना, पहले हम की रूल देख लेते हैं. तो की रूल जो है ना, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स. आई थिंक दैट इज इजी एनफ, ठीक है. एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं. इट्स दैट सिंपल. सो द नंबर इज रिफ्लेक्टेड बाय इट. सो सब्जेक्ट के जितने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है. इट्स दैट इजी. चलो जी. एंड व्हाई डज इट मैटर? इट मैटर्स. अच्छा, तो मैटर में बता दी, एग्जांपल्स देख लेते हैं. सिंगुलर में देखो, शी रीड्स एवरी डे. सो इट्स बेसिकली अबाउट वन पर्सन. अब इससे पिछली अगर आप लोग क्लास में जाएं, जो मैंने टेंसेस की क्लास ली थी, वन थिंग आई टोल्ड यू गाइस वाज दैट आप एस या ई एस सिर्फ तब ऐड करते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, ठीक है. आप एस और ई एस, ठीक है, ऐड सिर्फ तब करते हो अपने वर्ब के साथ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ठीक है. सो over here it's one person, it's she, it's one person, it could be me, it could be any of you, ठीक है. So this basically tells you, this reflects to you, ठीक है, कि she is somebody who reads every single day. So now reads में जब आप s और es add करते हो, that actually shows you this is we are talking about a single person, ठीक है. So sorry. Here she reads every day. अच्छा, plural में they read every day. So this basically because there are a lot of people, ठीक है, तो आपने उसमें read यूज किया है. It's that simple. verb के साथ हमेशा s और es तब यूज होता है, ठीक है, जब verb होता है वो बात कर रहा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट की, ठीक है. एंड देन verb in its first form, in its simplest form, ठीक है, यूज होता है without s or es, ठीक है, when we're talking about a lot of people, so basically plural, ठीक है. I hope that's very clear to you, ठीक है. अच्छा जी, कॉमन रूल्स देख लेते हैं फॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सही है. सबसे पहले कंपाउंड सब्जेक्ट्स देख लो, ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. तो जॉन एंड मैरी आर स्टडीइंग. सो दिस आर, ठीक है, शोज के बेसिकली दो बंदे हैं जिनको हमने अलग अलग, हमने इनको इकट्ठे नहीं किया, दे आर स्टडीइंग भी कर सकते थे, बट हमने इनको अलग अलग स्टेट किया है, ठीक है. So are studying, so that basically shows you कि प्लूरल सब्जेक्ट जब आएंगे दो कंपाउंड तरीके से आएंगे, ठीक है, तो तब भी हम स्टडिंग तो इज हैपनिंग ऑब्वियसली, बट साथ आर भी यूज हो रहा है. उसके बाद सब्जेक्ट्स जो कि सेपरेट होते हैं फ्रेजेस से. सो इंटरवीनिंग फ्रेजेस को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? तो बेसिकली द गर्ल अलोंग विद हर फ्रेंड्स is here. So हम बीच में जो ये वाला फ्रेज है ना, हम इसको इग्नोर करते हैं, because the thing is you need to realize कि यहाँ पे जो along with her friends है, अब friends is plural, ठीक है, बट हमारा मेन सब्जेक्ट जो है ना, सिर्फ हमने उस पे फोकस करना है, which is the girl. So you are just going to focus on the main subject, ठीक है. और आप इससे मेन सब्जेक्ट पे फोकस करके जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होएगा वो फिर सिंगुलर पर्सन के ऊपर चला जाएगा. एंड व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली इज दैट कि हम उसके फ्रेंड्स को जो कि प्लूरल में है क्लियरली, ठीक है, उनको इग्नोर करके हम मेन सब्जेक्ट को देखेंगे. मेन सब्जेक्ट सिर्फ एक लड़की है, ठीक है, तो हमने इज हेयर, ठीक है. इट कुड बी द गर्ल अलोंग विद हर फ्रेंड्स आर हेयर, दैट्स द रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज द गर्ल इन दिस सेंटेंस, ठीक है, इज द मेन सब्जेक्ट. तो हम मेन सब्जेक्ट को करके हम बीच में जो है इंटरवेनिंग फ्रेज, जो ये देखो ये कॉमर्स के दरमियान में है इंटरवेनिंग फ्रेज, ठीक है.
So there's that and there's that. This is an intervening phrase. We don't really need it, but just to state कि इसकी दोस्तें भी साथ हैं, ठीक है. हम मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे. जो मेन सब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है, वो गर्ल है, इसीलिए हमने is here किया है. So I hope that's understandable, ठीक है, to all of you. Indefinite pronouns की बात करते हैं. Everyone is welcome, always singular, ठीक है. Both are coming, जो कि हमेशा plural होता है. Wait, let me just change the pen color. Indefinite मतलब कि जब हम everyone की बात करते हैं, it's just the rule of thumb कि जब हम everyone की बात करते हैं, ठीक है, तो हम is लगाते हैं. और जब हम both बात करते हैं, तो it's always plural. So everyone is welcome. It's always, you know, a singular, because हम everyone को सिर्फ एक singular चीज में like इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है. हम they को नहीं करते हैं singular में, ठीक है, लेकिन हम everyone को करते हैं. So this is something that is one collective. ठीक है. So it is something that is one collective, ठीक है. तो everyone को हम singular की तरह treat करते हैं. So treated as it is treated as singular basically, ठीक है. But जब हम both की बात करते हैं, तो वो it's always are, ठीक है, because again we are talking about two people और हम both को इकट्ठे नहीं करते, लेकिन singular की तरह treat नहीं करते हैं, ठीक है. So that actually shows you that it is always plural. Collective nouns देख लो. The team is winning. Again, the team, because the team, for example cricket team की हम अगर बात करें, तो there are 11 players, है ना. There are 11 players. क्या 11 players को हम क्या करते हैं, collective कर देते हैं, because the thing is हम हर बंदे को अलग अलग state down नहीं कर सकते हैं. सही है. So हम क्या करते हैं, हम collective nouns की तरह, ठीक है, the team is winning, so we're using it as a single unit. So team is a single unit. जैसे मैंने कहा था everyone is a single unit here, ठीक है, वैसे ही जो team है आप उसको collectively use करते हो, ठीक है. But क्योंकि अगर team in itself, the word is collective, अगर हम लोग उसमें members की बात करेंगे, so basically the team members. अब हमने क्या कर दिया, team से members को अलग कर दिया, ठीक है. तो वे लाइक टीम भी है, एंड उस टीम के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, दिस मेंबर्स इज द प्लूरल, ठीक है. तो ये प्लूरल है, ठीक है. सो द टीम मेंबर्स आर सेलिब्रेटिंग, जो टीम के मेंबर्स हैं वो सेलिब्रेट करें. अब इसीलिए यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि टीम जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके हमेशा उनको, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं. लेकिन जब हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं मेंबर्स, ठीक है, तो इट बिकम्स अ प्लूरल, ठीक है, व्हिच इज व्हाई वी हैव यूज्ड द प्लूरल word. So this is basically the common rules for subject and verb agreement. This is something I did for the students, but because there are no students here today, and if you actually see some people they're here, अगर तो आप इधर हैं and you can do this exercise, please quickly respond with a yes, ठीक है, ताकि हम लोग ये कर लें इकट्ठे अभी एक्सरसाइज, आप लोग मुझे आंसर्स बता सके. आई एम गोना बी वेटिंग फॉर यू, सो क्विकली टेल मी. एनीवेज, इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप खुद ही इसको कर लें, सॉर्ट ऑफ सॉल्व. सही है. चलो जी, मूविंग ऑन, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग नाउन एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट. तो हमारी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट तो हो गई है, ठीक है, लेकिन हमने नाउन एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट जो है वो पढ़नी है. सही है. चलो, तो डेफिनेशन क्या है, अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट, इज बेसिकली कि जब नाउन एंड प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक है, वो एग्री करते हैं इन नंबर. अगेन दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, दिस इज जस्ट एज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, बट इट्स फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है. तो दे एग्री इन नंबर, ठीक है, देयर सिंगुलर और प्लूरल, और जेंडर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू नो that we're talking about something, whether it's a male, a female, ठीक है, a thing, जिसके साथ it वगैरह, animal वगैरह जो होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है. So
फॉर एग्जाम्पल एनिमल, ठीक है। डेफिनेशन में नाउन एंड प्रोनाउन जो कि एग्री करते हैं नंबर में, सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर में, ठीक है। तो व्हाई डज इट मैटर? इससे अगेन कोहेरेंस आती है और अवॉइड होती है कंफ्यूजन सेंटेंसेस में कि एग्जैक्टली बात किस चीज की हो रही है। हर नाउन का एक प्रोनाउन साथ होता है, वी नीड टू ज्वाइन देम टुगेदर, ठीक है, व्हिच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, ताकि हमें क्लैरिटी मिले, हमें एक तो हमारा कोहेरेंट हो जाए, दूसरा हमें क्लैरिटी मिले, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी इजी गाइस, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर आप देख लो, सिंगुलर में द डॉग wagged its tail, so because we're talking about a dog and with animals we always use it, ठीक है। so the dog wagged its tail, ठीक है, its tail, so this is the pronoun for it, so this is being reflected and they actually, you know, tell you कि we're talking about an animal, so the dog wagged its tail. Plural में जाए तो dogs wagged their tail, so because this is singular, ठीक है, तो वो it हो जाएगा, and because this is again it के साथ s क्यों हुआ, I told you guys पहले भी कि जो भी चीज होती है उसके साथ हम s ऐड कर देते हैं when we're talking about a singular thing, ठीक है। अच्छा जी, plural, the dogs wagged their tails because now there are a lot of dogs we're talking about, ठीक है, so there is important because this then reflects that there are a lot of, you know, dogs with their tails, ठीक है। You can't be like the dog wagged its tails because that is wrong grammar, सही है। So the noun is an agreement with the pronoun that is being used, ठीक है, over here this is plural, ठीक है, and we're talking about a एनिमल, सो उसके साथ हमने इट के साथ देयर यूज किया है। तो आपको जेंडर भी सॉर्ट ऑफ लाइक, जेंडर तो खैर नहीं है ये, बट आपको पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। कॉमन रूल्स देखे फॉर नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, a student should complete his or her work, so now this is we're talking about, let's cut this out, let's suppose, ठीक है, और हम इसको भी, सॉरी, इसको भी हम कर देते हैं दिस, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। सो सिंगुलर में अगर हम जाएं, आप देखो, दिस स्टूडेंट शुड कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज इट्स वन स्टूडेंट, ठीक है, दिस एंड दिस इज वन स्टूडेंट, सो इट्स हिज। अब नाउ व्हाट डज दैट टेल यू, दैट द स्टूडेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, इज मेल, ठीक है। तो आपको, ठीक है, दिस स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कैन बी एनीबॉडी, ठीक है, तो आपको था, बट जब आप आगे गए और उस पर जब आपके लिए प्रोनाउन आया और वो एग्रीमेंट के साथ बात करें क्योंकि स्टूडेंट इज मेल, तो आपने हिज यूज किया, तो यू ऑटोमेटिकली गॉट द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, सही है, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। एनीवेज, अब यहाँ पे नीचे ही अगर हम प्लूरल में जाएं, ठीक है, we're talking about a lot of students, so the students should complete, so students, and क्योंकि we're talking about more than one person, then it becomes there, so now there is obviously, ठीक है, them, they, obviously उसके अगली एक्सटेंशन में there है, ठीक है, these are all plural, सही है, these are all plural, so them, they, their, ठीक है, whatever. So students should complete their work. So the pronoun is actually in agreement because nouns plural है ना, तो pronoun भी plural है. So that agrees. Okay, sorry guys. Indefinite हम pronouns की बात करते हैं, ठीक है. So indefinite pronoun में कोई भी anyone can bring his or her book. So basically they're saying कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी किताब लेके आ सकते हैं. तो हम लोग लड़कों को और लड़कियों को अलग कर रहे हैं, ठीक है. His or her book. This is singular. Because we're saying कि या तो वो अपनी किताब लेकर आए, ठीक है, लड़का होगा, या लेकर आएगी, लड़की होगी. तो ये तो हमने इनको अलग कर दिया. जेंडर न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि जब हमें जेंडर का नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन हम नहीं जेंडर को स्पेसिफाई करना चाह रहे होते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
for singular gender neutral use. अब this is something you guys obviously don't need to know about it, but this is something you could use. ठीक है, तो for example आप नहीं बताना चाह रहे हो कि what is the gender of the person, ठीक है, so you say the teacher said that they will grade the papers, so you use they. अब this is something which is not a part of your syllabus obviously, ठीक है, but something you need to do अगर आपने किसी का gender नहीं define करना, ठीक है. This is another one of the exercises because there are not a lot of students in this class. ठीक है, you can जब आप इसकी recording देखते होगे, you can pause it and then you can solve this for yourself. सही है? It's simple enough. चलो जी, moving on. This is also an important thing. ठीक है, और ये सारे by the अलग-अलग headings. So noun pronoun agreement and then subject verb agreement, and now we're doing connectives and transitional devices. तो definition हम देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है कनेक्टिव्स और ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, ठीक है. सो द डेफिनेशन फॉर इट इज कि वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि करते हैं आइडियाज को लिंक, ठीक है, सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, पैराग्राफ्स को लिंक करते हैं, ताकि एक अच्छा सा फ्लो जो है ना. रियली द साउंड इज लो guys. No, actually I'm getting it's very pretty good, like सही आ रही है. I'm so sorry, like because there were no students here, I can't really know कि you can hear me or not. Okay, I think it's perfectly good because वो मेरे सामने तो acoustic सिखा रहे हैं and it sounds well enough. But here anyways I'll try to speak in a louder tone. Definition क्या है connective और transitional devices की कि वो words और phrases जो कि link करते हैं ideas को, ठीक है, सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को, ताकि एक अच्छा सा फ्लो क्रिएट हो सके और कोहेरेंस आ सके राइटिंग में. व्हाट डज कोहेरेंस मींस? मतलब क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, फ्लो सही हो जाए, सही है. तो बेसिकली हमारी राइटिंग का फ्लो अच्छा हो और हमारी राइटिंग की कोहेरेंस हो, ठीक है. अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इज बिकॉज के इट विल एट द एंड ऑफ द डे हेल्प यू. सॉरी, अच्छा जी, सॉरी. So this will actually help you, ठीक है, किसमें? This will help you in your writing, in your composition, ठीक है. हर तरह की, भले वो राइटिंग में लेटर हो, ठीक है, भले वो जो है क्या हो, आपके रिपोर्ट राइटिंग हो, भले वो आपकी कोई पैराग्राफ राइटिंग हो, समरी राइटिंग हो, दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू, ठीक है, ताकि आपकी जो भी राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग है उसमें फ्लो बेहतर हो, ठीक है. सो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि व्हाई डज इट एक्चुअली मैटर, इज बिकॉज कि इट विल हेल्प द रीडर फॉलो द लॉजिक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट एंड आइडिया. सो आपका जो लॉजिक है ना, ठीक है, और जो रीडर है, so बेसिकली हम यहाँ पे रीडर को लेते हैं एज द एग्जामिनर. वो आपकी लिखी हुई कोई भी राइटिंग या कंपोजिशन अगर पढ़े, ठीक है, और उसमें फ्लो ना हो, ठीक है, तो वो आपको नंबर कैसे देगा? यू विल बी ऑब्वियसली बी लूजिंग मार्क्स, ठीक है, वेयर यू शुडंट बी लूजिंग मार्क्स अगर आपने इस तरह की चीजें सीख ली हैं, ठीक है. और एग्जामिनर पढ़ेगा तो देखो आपको आपके साथ, अच्छा लेट्स सपोज आप लोगों की ग्रामर कुछ हद तक अच्छी होगी, आप किसी का बहुत ही स्टूपिड किस्म का लिखा हुआ, ठीक है, मैसेज या कोई राइटिंग या कोई पोस्ट पढ़ते हो, एक्चुअली इट गिव्स यू वेरी बैड वाइब. आपको अच्छा नहीं लग रहा होता पढ़ते हुए, यूर लाइक ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ग्रामर ठीक नहीं है और पंक्चुएशन ठीक नहीं है, so that actually gives you bad taste in your mouth. आपको बुरा लग रहा होता है कि क्या है, ठीक है. वैसे ही आपने जब आप ये चीजें यूज नहीं कर रहे होगे कनेक्टिव ट्रांजिशनल डिवाइसेस को, ठीक है, what will actually end up happening is that this examiner, ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि वो आपकी जो लॉजिक है, आपके आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज को उसको फॉलो नहीं कर सकेगा, which is a bad thing, which will make you ultimately lose marks. That is obviously what we don't want, ठीक है, we don't want to lose marks, सही है. तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एडिटिव का मतलब है कि आप ऐड करना चाह रहे हो सेंटेंस में कोई चीज, ठीक है, so you're listing something out, so you're adding those things, and also furthermore, ठीक है, you're adding to the sentence or the argument already, ठीक है, you're adding to the idea.
जो भी आइडिया है, एंड ऑल्सो फर्दर मोर, सही है। फॉर एग्जाम्पल, she likes to have apples and oranges in the breakfast, तो सिर्फ वो apples नहीं खाती, मैं ऐड कर रही हूँ कि वो oranges भी खाती है, ठीक है। also में हो सकता है कि Ahmed likes to eat chocolate, comma, also he likes to eat it with marshmallows, तो जो भी, ठीक है, और मेल्टेड चॉकलेट। तो आपने ऐड किया एक आइडिया कि चलो ये भी करता है और ये भी साथ ही करता है, ठीक है। फर्दर मोर हम लोग थोड़ी ज्यादा फॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ पे सेंटेंस एंड करते हैं उसके बाद हम लिखने के बजाय ऑल्सो या एंड लिखने के बजाय हम लिखते हैं फर्दर मोर, मतलब कि जो पिछली आर्ग्यूमेंट चल रही थी उसमें हमें और फर्दर ऐड कर रहा हूँ कि ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो दैट इज वेयर यू ऐड फर्दर मोर, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिव मतलब कि जहाँ पे ऑपोजिट बात आपने करनी हो, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी ऑपोजिट बात करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करते हो बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड या ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है। सो इट इज दोस थिंग्स, सो ऑन द कॉन्ट्ररी, सही है। तो मैं कहती हूँ कि मारिया लाइक्स चॉकलेट बट ओनली व्हाइट चॉकलेट। तो मारिया को चॉकलेट पसंद है बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ व्हाइट चॉकलेट पसंद है, सो एवरी अदर चॉकलेट वो एक्सक्लूड हो गई है, ठीक है। Maria has an exam but she is not studying for it, so बिल्कुल opposite idea होगा कि although she has an exam she is not studying for it, so something that is opposite है, ये होना नहीं चाहिए but ये ऐसे है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग फिर अगेन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है, कि हम फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा है द एडवांटेजेस ऑफ एआई, ठीक है, और आप लिखते जा रहे हो कि अच्छा ये आपको एड करता है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट फिर आपको वहाँ सेंटेंस जब आप सारे एडवांटेजेस लिख लोगे, आप लोगे ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एआई इज आल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन XYZ, तो आप डिसएडवांटेजेस लिखना शुरू हो जाओगे। तो द मोमेंट यू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड आप उसका एक्सट्रीमली ऑपोजिट बात लिखना शुरू हो जाओ, ठीक है, इज वेयर यू यूज स्टफ लाइक ऑन द अदर हैंड या हाउएवर, ठीक है। कैजुअल तरीके से अगर आपने इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो आप बोलोगे बिकॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट आई थिंक इट्स मोर फॉर्मल बट स्टिल, ठीक है। सो बिकॉज में Maya is sick because she did not wear warm clothes. So the reason why she's sick is because उसने गर्म कपड़े नहीं पहने तो वो बीमार हो गई है, which is true, which is what actually happened to me right now. Therefore again मतलब इस चीज की वजह से, ठीक है, इस चीज की वजह से the teacher did not teach the class well, therefore all her students failed, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द टीचर नॉट टीचिंग वेल की वजह से ही उसके स्टूडेंट्स फेल हो गए, एज अ रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में, ठीक है। सो कनेक्टिव और ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारी चीजों में ऐड, कंट्रास्ट या कैजुअल तरीके से कुछ चीजें आगे फ्रेजेस को ज्वाइन करती हैं। तो दीज आर थिंग्स बेसिकली, ये जो चीजें होती हैं डिवाइसेस, ये क्या होती हैं, ये टू फ्रेजेस को लेट्स सपोज, ठीक है, ज्वाइन करती है। Yeah, it can be used as an additive. You're right. ठीक है, सो दो फ्रेजेस को जो होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, आई जस्ट कम हियर, ठीक है, वो ज्वाइन करती हैं, ठीक है। सो इट मेक्स योर, अब किसी भी तरह से ऑपोजिट तरीके से, सिमिलर तरीके से, एडिंग के तरीके से, सब्ट्रैक्टिंग व्हाटएवर के तरीके से उसको यूज कर सकते हो आप। कैटेगरीज अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एडिटिव हो गया मोरओवर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, तो इट बेसिकली एड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडिटिव हो गया, इट्स समथिंग दैट एड्स इंफॉर्मेशन। एडवर्सिव, कंट्रास्ट करते हो आप कोई बात, ऑपोजिट बात लिखते हो, ऑपोजिट स्पेलिंग लिखते हैं। I don't know why it's creating problems for me.
ऑपोजिट, ठीक है। सो ऑपोजिट आपने कोई बात लिखनी हो तो येट, ऑन द कॉन्ट्ररी एंड नेवरदलेस, ठीक है। आप ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग बात लिखते हो, ठीक है। कैजुअल में आप कॉज एंड इफेक्ट बताते हो किसी चीज का, कि खास मतलब इसकी वजह से, कॉन्सिक्वेंटली इसके कॉन्सिक्वेंस में, हेंस मतलब आप किसी चीज का रीजन या रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हो, सही है। दैट इज वेयर यू यूज दिस। तो फॉर रीजन या रिजल्ट यू यूज दिस, ठीक है। बच्चों यूज। अच्छा जी, सीक्वेंशियल मतलब कि ऑर्डर शो करते हो, आप सीक्वेंस शो करते हो किसी चीज की, या ऑर्डर शो करते हो, नेक्स्ट, देन, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। so this shows you the order of something, ठीक है। these are the categories of connective, and transitional में you can obviously have transition करते हो दो sentences के दरमियान में। तो इसमें सब ये ट्रांजिशनल भी है, ये भी ट्रांजिशनल है, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। यार ये पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, ऑपोजिट, ठीक है। सो मूविंग ऑन, हम प्रैक्टिस मैंने की हुई है, बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू आल्सो सॉर्ट ऑफ सीइंग दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप रोक लो, ठीक है, और आप ये सॉल्व कर लो। I hope this topic was clear to you, and inshallah I'll be seeing you in the next class whenever that is, ठीक है। And I hope this was clear. Please इसकी practice drill जरूर करनी है आप लोगों ने। The practice drill is already uploaded, ठीक है। So करके आपने मुझे check कराना है। Okay guys, Allah Hafiz. It was really nice talking to you.